Good morning, students. The topic that we are going to study today is management of working capital. We have already seen that firm requires to make investment into fixed asset, which calls for the need of maintaining the fixed capital. Now, along with fixed asset, a firm also requires to invest into current assets. So this investment of firm into the current asset is termed as working capital. Now, why the word working capital? Since this capital is going to be utilized to meet its day-to-day operation, it is termed as working capital. We already know what do you mean by current asset. The asset which are held by the organization for relatively shorter period of time, for less than 1 year, is termed as current asset. For example, your cash and bank balance, your trade receivables, your your inventories, then your marketable securities, your prepaid expenses, all this comes under your current asset. Why it is important for the firm to maintain the investment in current asset? So that it is able to meet its future short-term debt. Now, what do you mean by short-term debt or short-term obligation? It is nothing but it is your current liabilities that are in the form of your creditors, your bills payable, and your short-term loans which you have taken from the banks or other financial institution. So, some part of current asset is financed through current liability. Now, what do you mean by this? जैसे करंट लाइबिलिटी में आपका शॉर्ट टर्म लोन्स होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं. तो आप लोन किस लिए लेते हो? शॉर्ट टर्म, ताकि आप आपके करंट एसेट्स को फाइनेंस कर सको, आप इन्वेंट्री खरीद सको, या आप छोटा सा कैश बैलेंस मेंटेन कर सको, आप रॉ मटेरियल्स खरीद सको. तो उस पर्पस के लिए आप लोन लेते हो. सो सम पार्ट ऑफ करंट एसेट इज फाइनेंस थ्रू करंट लाइबिलिटी. रेस्ट इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स विच इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल. और बाकी का जो हिस्सा है, ठीक है, वो आप किससे फाइनेंस करोगे? इट विल बी फाइनेंस थ्रू नेट वर्किंग कैपिटल. So what is net working capital? It is nothing but the current asset minus current liability. So your net working capital is nothing but the excess of current assets over the current liabilities is termed as your net working capital. जैसे पिछले साल का अगर आपका कोई net working capital रहा होगा पॉजिटिव, तो वो भी आप आपके इस साल के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज कर सकते हो. So there are certain factors which are affecting the working capital requirement. The very first factor is the nature of business. Now, each and every business will have different operating cycle. First of all, what do you understand by operating cycle? Operating cycle is nothing but the period between the acquisition of raw materials and converting it into finished goods and cash equivalent. जैसे जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, ठीक है, उसको जब तक आप फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं कर देते हो, उसके बीच में एक टाइम गैप होता है. सो दैट टाइम गैप इज टर्म्ड एज योर ऑपरेटिंग साइकिल. So when there is a trading concern, the operating cycle will be very less because उनका काम क्या होगा? रॉ मटेरियल खरीदो और उनको मार्केट में कैश सेल्स में बेच दो. So here sale procedure will be very fast, so the need of working capital will be also very less. But in case of manufacturing concern, the operating cycle will be more. That is, first they will have to purchase the raw material, then convert it into semi-finished goods, then finished good, then go for the sales, and then cash will be received. So the time gap will be more. So in this case, the working capital requirement will be also very more. So according to nature of business, that is through operating cycle, the working capital amount will be different. Similarly, scale of operation, that is अगर कोई large scale business होगा तो working capital requirement will be also very high, whereas small scale business होगा so inventory या उनकी कैश की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी, तो उस केस में उनका requirement of working capital will be also very less. So scale of operation will also determine the amount of working capital required. Then business cycle. Then again the business goes through stages, that is boom period and the recession period. जब boom period होगा, that means the demand for the product will be more, sales will be more, accordingly production will be more. Production ज़्यादा होगा तो more and more inventories and raw materials will be required. आपके डेटर्स भी बढ़ जाएंगे. So इसमें क्या हो जाएगा? आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी ऑल्सो वेरी मोर. जबकि रिसेशन पीरियड में आपका सेल्स विल बी एट स्टेगनेंट हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम होगा, तो उस केस में क्या होगा? योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. देन सीजनल फैक्टर, यानी कोई बिजनेस होता है जो सीजनल पीरियड से जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल रेनी सीजन हो, तो दी इंडस्ट्रीज विच आर इन्वॉल्व इनटू डीलिंग विथ प्रिपेयरिंग ऑफ रेनकोट्स या अम्ब्रेलास होगा, तो उसी पीरियड में उनका डिमांड ज्यादा होगा. उस केस में उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. जबकि दूसरे पीरियड में जब ये काम नहीं होगा, तब उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. Then the production cycle, we have already seen that there is a time gap between the receipt of raw material and conversion of it into finished product. तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है या प्रोडक्शन साइकिल है, इट विल बी नॉट सेम फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस. जैसे प्रोडक्शन साइकिल फॉर अ कार विल बी मोर देन द प्रोडक्शन साइकिल ऑफ अ स्विंग मशीन. सो कंपनीज जिनका प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा होगा, उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी ऑल्सो मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल. देन क्रेडिट अलाउड.
क्रेडिट अलाउड मतलब क्या है, अगर कंपनी ने गुड्स को क्रेडिट में बेचे हुए हैं एंड इफ यू आर गिविंग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर द पेमेंट टू द डेटर्स, तो इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको जब तक उनका पैसा नहीं आ जाता तब तक आपको सस्टेन करने की जरूरत होगी. सो जो अगर क्रेडिट पॉलिसी फर्म की बहुत स्ट्रांग होगी, यानी आपका कलेक्शन पीरियड बहुत ही कम होगा, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी. लेकिन अगर आपकी लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी है तो इस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. जैसे आप क्रेडिट अलाउ करते हो वैसे आप क्रेडिट अवेल भी करते हो. दिस क्रेडिट अवेलिंग गिव्स राइज टू क्रेडिटर्स. तो जितना ज्यादा आपको क्रेडिट अवेलिंग मिलेगा उतने आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, बिकॉज क्रेडिटर को आपको जो पैसा चुकाना है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपको पता है कि क्रेडिटर मुझे 2 या 3 महीने के बाद भरना है, तो तब तक आपका जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी. So that will be your credit avail. Then operating efficiency. Again the operating efficiency of each and every organization is different. अगर आपकी इन्वेंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर एबल टू मेंटेन योर इन्वेंट्री इन अ वेरी गुड वे, अगर आप प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हो तो आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा पैसा ब्लॉक इन्वेंट्री में नहीं होगा. सो इस केस में आपका वर्किंग कैपिटल भी कम होगा. सिमिलरली अगर आप आपके डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो, आप स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हो, तो अगेन उस केस में भी आपकी वर्किंग कैपिटल विल बी लेस. सो इफ यू आर ऑपरेशनली very much efficient, then your working capital requirement will be less as compared to those organizations जहाँ पे inventory management का problem आता है. Then availability of raw material. अगर आपको लगता है कि raw material easily market में available है और उसका stock maintain करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी inventory की requirement भी बहुत कम होगी. So again your working capital requirement will be less. See, कभी भी याद रखना कि करंट एसेट में इन्वेंट्री और डेटर्स ही ये दो ऐसी चीजें होते हैं जहाँ पे आपका मैक्सिमम पैसा ब्लॉक होता है. तो अगर आप ये दो चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो सो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी वेरी लेस. अगेन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर आपको ग्रोथ पोटेंशियल लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इट विल बी हायर, तो उस केस में अगेन आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं होगा. देन लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, अगेन अगर आपको कॉम्पिटिशन मेंटेन करना है तो आपको लास्ट स्टॉक करने की जरूरत होगा फिनिश गुड्स का या आपकी इन्वेंट्रीज की. तो जितना ज्यादा फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन करोगे उतना ज्यादा आपका मेंटेनिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा. सो इन दिस केस योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी ऑल्सो मोर. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द इन्फ्लेशन. दैट इज अगर प्राइस राइज होता रहेगा तो लार्ज अमाउंट आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी. तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट thus it will become higher with high rate of inflation. So that's all. So with this I have completed with the chapter. Soon I will be forwarding you various types of case studies and important questions from the board's perspective. Thank you.